everyone and a warm welcome to Programmatics Institute YouTube channel. So recently we've been coming up with various video contents on topics related to students and parents and unique topics actually. So recently Mohit sir and Brijesh sir came up with a topic called Dil Chahe IIT का जो पूरा series था for all the IIT aspirants. उसके बाद मोहित सर एंड अंकित सर अगेन केम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे जो डरावना सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसके लिए जो सीरीज उन्होंने रेडी किया है. आफ्टर दैट वी आल्सो हैड अ सीरीज ऑन करियर गाइडेंस रिगार्डिंग टू ऑल द careers. So today we thought about why not come up with something, a series that has got all the students and parents talking about it, and an amazing change that our government has got, that is the new education policy 2020. So for that we have with us Pratik sir today. So he will be guiding us through the NEP का जो पूरा जो concept है उसको समझने में. So he is the founder of Programmatics Institute and he has experience of 10 years in guiding and mentoring students, and he is an engineer by qualification. So Pratik sir, could you please guide us with the entire? Thank you so much for the great introduction, Nidhi ma'am. And I would like to first of all thank all the parents, all the students, because you are going to face an amazing educational policy जिसमें बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने के लिए. At the same time, I would like to thank the government and the education ministry, because after 4 years we are seeing such a transformational policy. 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट came up with a new education policy. उसके बाद चेंज हुआ 1986 में by the राजीव गांधी गवर्नमेंट, and after 34 long years एक ऐसी पॉलिसी आई है which will put India at par with the world educational standards. Okay, इंडिया को आपको पता होगा तो मैम इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. India was famous for its world-class universities like Nalanda, like Takshashila, and India का एजुकेशन काफी होलिस्टिक था. बट पिछले 200 सालों में इस होलिस्टिक एजुकेशन को रॉट लर्निंग में कन्वर्ट किया गया था. बट वी आर वेरी एक्साइटेड नाउ कि अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है. सो मैम आप बताइए आप कैसे इसको डिकोड करें पूरी तरह से. So as they say, a nation becomes great on the basis of the excellence of its education system. Yes. So India, I think it's already is on its way. So let's decode the new education policy. So sir, if you could just take us with the basic changes to Structural changes, yes, structure or the basic changes. So parents and students हमने 10 main points बनाए हैं which can impact students as well as parents as well as people who are aspiring to go for higher education and so on. So let us start. And जैसे निधि मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, शी इज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड वो भी काफी सारे बच्चों को गाइड करते हैं. सो लेट अस बिगिन. सो NEP 2020 in 10 simple points जो आपको समझ में आए. So point number 1 is the basic structure of the education system जो previously था 10+2 मॉडल में, और अब इसको कन्वर्ट करके बनाया गया है इन 5+3+4 मॉडल. तो ये काफी ट्रांसफॉर्मेशनल है. पहले 12 साल की पढ़ाई होती थी, अब इसको बढ़ाकर 5+3+4 मॉडल में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड किया गया है विद फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे पहले 5 साल होते हैं. और इस पे पूरा फोकस दिया गया है प्रिपरेशन, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, खेल कूदेगा बच्चा, एंड विल बी इंट्रोड्यूस टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स इन अ फन वे. इसके बाद आएगा 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5 स्टैंडर्ड तक का प्रिपरेटरी विंडो, ओके, जिसमें बच्चों को मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इस सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अलॉन्ग विद लैंग्वेजेस. इसके बाद आएगा 6 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक का विंडो विच इज द मिडिल स्टेज, विच इज ये मेरे को सबसे अच्छा लगा मैम. इसमें आपको पता होगा तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं लाइक कोडिंग, लाइक पॉटरी, बेकरी. तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ही कैन ऑल्सो डू एन इंटर्नशिप. तो ये काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इंकलकेट करने का. एंड लास्ट जो है वो है 9 to 12 स्टैंडर्ड का विंडो, जहाँ पे रादर देन रॉट लर्निंग, बोर्ड एग्जाम्स, स्ट्रेस, इससे ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाया है.
तो मैम आप बताइए कैसे I think it's a lot of skill-based Yes, yes. learning and brain development. एक बच्चे का जो brain development होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो सारे पूरा stages बनाया गया। बनाए गए, right from play-based learning से initial discovery से लेके जो अपना last phase है 4 years Yes, का, yes. which trains them for transition into young adulthood, यस ट्रू। for livelihood skills etc. Livelihood skills. तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं वो है नो लैंग्वेज बैरियर। ये भी काफी अच्छा पॉइंट और इंक्लूसिव पॉइंट बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे जो रूरल एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, ये फर्स्ट सेकेंड करके छोड़ देते थे, ओके, एंड बिकॉज उनका रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होता था, बिकॉज इंग्लिश होता था, कोई जगहों पे स्कूल्स में लैंग्वेजेस का बैरियर होता था। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ट्राई किया है कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। तो मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, इससे क्या फायदा होगा लॉन्ग टर्म? I think the major जो फायदा होगा that is कि ज्यादा enrollment ratio बढ़ेगा, Yes. जहाँ पे remote areas, village areas, Yes. tribal areas True. में से enrollment ज्यादा आना बढ़ेगा। शुरू होगा, and I think काफी ज्यादा learning Indianized हो Yes, जाएगा, yes, where yes. the Very, students very will be learning in Indian languages about Indian cultures, Yes. so काफी एंड गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि 2030-40 के बीच में 100% एनरोलमेंट हो। सो दैट इज द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। पॉइंट नंबर 3 पे जाता है मैम, Yes. दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि आई रियली फील जेलस कि ये पॉलिसी हमारे टाइम पे क्यों नहीं थी। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है कि अब जो एक डिस्टिंक्शन था आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, वो काफी कम हो जाएगा। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा बड़ा मन था कि मैं अकाउंट्स भी पढूं, मैं साइकोलॉजी भी पढूं, बट वी हैड नो ऑप्शन। बट आज के बच्चों के लिए जो इस पॉलिसी में लागू होगा, उसके बाद बच्चा अगर इंजीनियरिंग ले रहा है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स को मेजर ले सकता है, और माइनर सब्जेक्ट में ही कैन आल्सो थिंक ऑफ साइकोलॉजी, ही कैन आल्सो थिंक ऑफ अकाउंट्स। सो मैम ये आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये कैसे अप्लाई होगा? So I think students get a varied experience अलग-अलग जहाँ पे, so we can think of inculcating sensitivity along with sensibility, जहाँ पे वो art Okay. forms के बारे में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ human behavior के बारे में भी पढ़ रहे हैं, so we can look at more and more global citizens coming up. एंड आपको बताना चाहते हैं हम लोग इवन IITs और जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है जैसे NITs है, इवन दे आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। सो इट इज गोइंग टू बी रियली ट्रांसफॉर्मेशनल। सो आगे बढ़ते हैं विद पॉइंट नंबर 4 इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। Very important. ये सबसे अच्छा पॉइंट जो गवर्नमेंट ने इनकलकेट किया है। मेरे टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अपना मास्टर्स कर रहा था, हर साल हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि 1 या 2 बच्चों को बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली में सडन डेथ हो गई किसी की, तो उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। 1-2 साल की जो पढ़ाई है पूरी तरह से वेस्ट हो जाती थी। बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर खत्म करके छोड़ते हैं तो यू गेट अ सर्टिफिकेट। अगर आप सेकंड ईयर खत्म करके अगर आप छोड़ते हैं तो यू गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप थर्ड ईयर करते हैं तो यू गेट अ डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आप फोर्थ ईयर का पूरा कंप्लीट करते हैं पढ़ाई तो यू गेट अ सर्टिफिकेट विद रिसर्च डिग्री। सो ये मेरे हिसाब से दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। कि जहाँ पे आपका किया हुआ पढ़ाई भी वेस्ट नहीं होता, Yes, at the true. same time आप ज्यादा कोर्सेज कर सकते हैं। सो ये काफी बेहतरीन पॉइंट है। 5th पॉइंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अब ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। जैसे आप अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसी तरह से जैसे आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और आप बीच में से छोड़ के जाते हैं तो वो पॉइंट्स एक डिजी लॉकर में रखे जाएंगे आपके नाम के अगेंस्ट। एंड आप अगर दूसरा भी कोर्स करना चाहते हैं, मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, तो भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो मैम इसका कैसे फायदा होगा लॉन्ग टर्म? So I think जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपने जैसे बोला कि काफी लोगों को छोड़ना पड़ता है बीच में Yes, से, अपना एजुकेशन कवर नहीं कर पाते, True. so many of them will be able to rejoin their education, complete their degrees, और Yes. अपना ओवरऑल जो enrollment ratio है, काफी जो अपना बढ़िया। बेसिक Yes. एजेंडा है वो भी कवर होता है यहाँ। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवैम्प ऑफ रिपोर्ट कार्ड। नाउ आपको सबको अपना दर्दनाक दिन याद होंगे आपके पीटीएम्स में जाना कि मैथ्स में इतने बच्चों कम है, साइंस में इसको कम है, टीचर बड़ी सुनाती थी, पर कभी किसी टीचर ने ये डिस्कस नहीं किया कि ये बच्चा भले पढ़ाई में अच्छा नहीं पर स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, सिंगिंग में काफी अच्छा है, ये बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी अच्छा है। सो अब से जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा दैट विल बी एज पर 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट होगा, पेयर असेसमेंट होगा, टीचर असेसमेंट होगा,
ओके, तो ये काफी अच्छा है। और इसमें अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स स्पोर्ट्स भी आएगा, मेंशन होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मेंशन होगा। तो मैम हाउ विल इट अफेक्ट द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इट विल ऑब्वियसली, पहले अभी के टाइम पे जो बच्चे थे फेलियर का टैग लग जाता है या लूजर का टैग लग जाता है इन देयर टर्म्स, तो वो काफी अवॉइड हो पाएगा कि बच्चे उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा कि आई एम गुड एट समथिंग। यस, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 7 इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब 12th तक देयर आर नो बोर्ड एग्जाम्स, ओके, बोर्ड एग्जाम्स कम है, स्ट्रेस कम है, काफी इजीली बच्चा कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए ओके आगे निकल जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे। बट इसके अलावा जो है कि आगे का पढ़ाई कैसे होगा, जैसे आज आपको पता होगा इंजीनियरिंग के लिए देयर आर 10 एग्जाम्स, ओके, अगर लॉ करना है देयर आर 2-3 एग्जाम्स, नीट करना है मतलब और कोई एग्जाम देना है देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स। तो बच्चे पेरेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस है। तो इसको हटाकर गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कि डिग्री कोर्सेज में जाने के लिए एक ही टेस्ट होगा और पूरे भारतवर्ष से बच्चे उस टेस्ट को देके जा पाएंगे। तो मैम हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट the students? Yeah. So it will काफी fair evaluation हो जाएगा। Yes. And also जो individual universities के जो exams है जिनको लिए बच्चों को अलग से prepare करना पड़ता Yes. है, that will also get eliminated, True, so true. will be better for the students. तो ये पॉइंट था काफी अच्छा। एक पॉइंट है सिंगल रेगुलेटर। हम जब प्रिंसिपल्स से मिलते थे, अथॉरिटीज से मिलते थे, तो उनका एक बड़ा कॉमन कंप्लेंट था कि यूजीसी से ये पास नहीं हुआ, ओके, एनएसी की एक्रेडिटेशन बाकी है, एआईसीटी का अप्रूवल रह गया। बट अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक सिंगल रेगुलेटर आएगा जो ध्यान देगा कि पॉलिसी इजीली पास हो पा रही है, फी कैपिंग होगा, ओके, सिमिलर नॉर्म्स होंगी फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक एंड एक्सेप्ट मेडिकल, एक्सेप्ट लीगल सर्विसेज, बाकी सारी चीजें एक सिंगल रेगुलेटर कंट्रोल करेगा। सो मैम हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट आवर स्टूडेंट्स? So स्टूडेंट्स के लिए काफी जो डिस्टिंक्शन रहता था कि कोई प्राइवेट कॉलेज या Yes. प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कोई पब्लिक स्कूल या कॉलेज में जा रहा है, तो उनकी जो डिफरेंशिएशन था इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एक्सेट्रा, वो Yes. आई थिंक काफी सिमिलर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और फीस कैपिंग जो पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत हाई चार्ज करते थे तो मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट अब ये रेगुलेटर्स को गवर्न करेगा। इसके बाद का एक पॉइंट है जो बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका नाम है डिजिटलाइजेशन, कि अब से रूरल एरिया का बच्चा भी सेम लेवल की पढ़ाई कर पाएगा जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। अगर उसको आईआईटी में पढ़ना है, आईआईएम्स में पढ़ना है, बट उस पर्टिकुलर विलेज में वो नहीं है, तो वो डिजिटल कोर्सेज कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल लैब्स, ओपन यूनिवर्सिटीज। इस तरह से वो गांव में बैठ के अपनी जगह पे बैठ के पढ़ पाएगा एंड एक जगह पे जाके वो एग्जाम दे पाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नाउ एंड दिस विल पुट इंडिया एट पार विद द इंटरनेशनल करिकुलम। ओके, तो मैम ये आपके हिसाब से क्या? आई थिंक लुकिंग एट इंडिया, जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इतना डाइवर्स है और इतने छोटे छोटे जगहों में है, तो आई थिंक रीच आउट करना काफी इजी हो जाएगा फॉर टीचर्स। तो ये काफी अच्छा है। एंड लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन टीचर्स। देखो हम जैसे मैंने एमटेक किया, पढ़ाना चालू किया, और निधि मैम ने एमए किया, पढ़ाना चालू किया, तो हमको कॉमन क्वेश्चन माँ बाप और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप इतना पढ़े तो आप टीचिंग में क्यों आए? हमको बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि टीचर्स को अलग तरीके से देखा जाता है कि कहीं जॉब नहीं होगा इसलिए टीचिंग में आ गए, या ऐसी बहुत सारी डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट्स है जो 6 महीने का प्रोग्राम करा के वो टीचर बना देती है। बट अब से गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि 2030 तक किसी को भी अगर टीचर बनना है, दे हैव टू गो थ्रू अ रिगरस इंटीग्रेटेड 4-year प्रोग्राम, प्रॉपर बीएड टीचिंग का प्रोग्राम से उसको जाना पड़ेगा और उसके बाद एक प्रॉपर फेयर बेसिस पे उसको प्रमोशन मिलेगा। और इस तरह से जो टीचर्स मिलेंगे बच्चों को, वो काफी हाई स्टैंडर्ड टीचर्स होंगे। सो मैम इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? So I think टीचर का जो एक रोल होता है बच्चे के लाइफ में, it is a very important role. Yes, It true. somewhere plays a role कि बच्चा दुनिया को कैसे देखता देखता है। है, true. So अगर वो टीचर क्वालिफाइड नहीं है इनिशियल लेवल पे, तो it becomes very difficult for a child to change that mindset. Yes. So I think अगर टीचर एक लेवल पे होंगे, उनका प्रोफेशनलिज्म इतना ज्यादा होगा, तो it might benefit the students. Yes. So ये थी पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ओवरऑल समरी। We have tried to dissect it, but easier said than done. On paper अगर हम इस पॉलिसी को देखें, so मैं बता रहा हूँ on 10 on 10 उसको देना चाहिए। But ideation without execution is an illusion. अब हमने ये देखना है कि इस पॉलिसी को नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सिटी लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है।
ओके या टीचर्स खाली इंप्लीमेंट करने के खाली सर्टिफिकेशन के लिए करती है या सच में एक गोल के साथ करता है कि बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट लाना है। तो देखते हैं कि पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। सो थैंक यू सो मच निधि मैम, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। So I think as we said paper पे तो it is looking amazing. So I think that the estimation is कि 2040 तक I think Implement होने की। completely implement 100% implementation के chances हैं. So hoping for the best. So thank you so much. मैं सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि डू कमेंट एंड टेल अस कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई अगर आपको टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए सो उसका भी मेंशन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको मोटिवेट करिए एंड वी प्रॉमिस यू टू कम अप विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस जो स्टूडेंट पेरेंट्स को हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। Thank you so much. छोड़ती बोल दो। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, Welcome. वार्म वेलकम। हाँ, Welcome to our channel, Programmatics Institute. So recently we've been coming up with content related to students and parents with some unique content. so first of all I would like to thank the government, the education ministry and all the students and parents because this is going to be a transformational education policy. Okay, ये 1968 में पहली बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी। 1986 में राजीव गांधी केम अप विद वन मोर पॉलिसी and in 2020 the Modi government came up with a very transformational policy.